Hello students. So next video of the human male reproductive system. Now we are going to concentrate on the secondary sex organs. So we have already studied that entire organs involved in the human male reproductive system. These are mainly made for which purpose? For the production of the gametes, that is the male gamete, nothing but the sperms, and transfer of these male gametes, nothing but the sperms, into the female genital tract. It is by the act of coitus or the copulation or mating or the intercourse. तो दो पर्पज हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. पहला है प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट्स और दूसरा है ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. और इस दोनों पर्पस के लिए जितने भी ऑर्गन्स डेवलप हुए उन सभी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमने किसको बोला था? दोज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट्स, मीन्स इन्वॉल्व इन द स्पर्मेटोजेनेसिस. और इन जनरल organs involved in the gametogenesis are called as the primary sex organs, and in case of the human male these primary sex organs are nothing but the testes, paired testes. हमने उनका लोकेशन स्टडी किया था. टेस्टिस आर दी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजिशन. उसका कॉज भी हमने स्टडी किया था. टू मिनिमाइज द टेम्परेचर बाय मीन्स ऑफ नियर अबाउट 2 to 3 degrees Celsius lower than the core body temperature for the better spermatogenesis. So for the production of the sperms, maturation of the sperms and further storage of the sperm. Okay, organs which get involved are called as the primary sex organs. Now here उसके बाद हमने टेस्टिस का सेक्शन भी स्टडी किया था. In a LS longitudinal section we already observed that outer tunica albuginea, which is the actual covering of the testes, sends many partition inwards, dividing the testes internally into the small chambers called as the testicular lobules. हर एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं which are highly coiled, जहां पर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होगा. और इनके स्टेजेस भी हमने ट्रांसफर सेक्शन में स्टडी किए थे. From these seminiferous tubules arises the straight ducts, that is a tubular recti. Okay, then these tubular recti unite to form the rete testes. Rete testes से फिर से silated fine tubules arise होते थे जिनको हमने बोला था vasa efferentia, which comes out of the testes. They get unite to form a single duct, and that duct is too much long. Okay, 7 to 12 meter long, and such 7 to 12 meter long duct which is highly convoluted, that means coiled, get covered by means of a muscular pouch, and that muscular pouch portion is called as the epididymis, which is located behind and above the each testis. We show the three major parts: upper head portion which is also called a caput epididymis, जिसको ग्लोबस मेजर भी बोला जाता है. मिडल टेपरिंग पोर्शन कॉल्ड एज द बॉडी और द कॉर्पस एपिडाइमिस, जिसको ग्लोबस नॉर्मल भी बोला जाता है. एंड लोअर मोस्ट नैरो रीजन कॉल्ड एज द टेल एपिडाइमिस और द कौड़ा एपिडिडाइमिस, जिसको ग्लोबस माइनर भी बोला जाता है. एंड देन फ्रॉम विच अराइजेस द एक्चुअल स्पर्म डक्ट, दैट इज अ वास्ट डिफरेंस. तो फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस वन वास डिफरेंस. तो अल्टीमेटली देयर आर द पेयर टेस्टिस. तो पेयर वासा डिफरेंशिया, जिसको हमने डक्टस डिफरेंशिया भी बोला था. नो हियर इस तरीके से जब टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं in the seminiferous tubule by the process of spermatogenesis, which is ultimately influences by the which gonadotropin, that is a FSH. Okay, now here under the stimulation of that FSH, when that spermatogenesis occurs, the sperms in a testes are still immature
इमोटाइल, वो वहां पर इमेच्योर स्पर्म्स है, इमोटाइल है, उनमें मोटिलिटी नहीं है, खुद होकर मूव नहीं कर सकते हैं। इवन तो अगर हमने टेस्टिस से डायरेक्टली स्पर्म को कलेक्ट कर लिया और कल्चर मीडियम में अगर सेकेंडरी ओसाइड यानी एग के सराउंडिंग में उनको प्लेस कर दिया, दे कैन नॉट फर्टिलाइज दैट एग, उनके पास कंप्लीट मैच्योरिटी नहीं है। हाँ, स्पर्म्स खुद होकर कब मूव करेंगे, कब उनके पास फर्टिलाइजेशन एबिलिटी आएगी, जब स्पर्म्स एंटायर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को क्रॉस करके इजैकुलेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंट्री करेंगे। वहां पर भी वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और उस डिस्टेंस ट्रेवल करते समय उनमें मोटिलिटी आएगी बिकॉज ऑफ हाई ऑक्सीजन कंटेंट्स। वहां पर उनको हाई ऑक्सीजन कंटेंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से मोटिलिटी उनको कहां पर आएगी, वो खुद होकर कब मूव करेंगे, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंट्री करेंगे और वहां पर एक कैपेसिटेशन प्रोसेस के द्वारा उनमें फर्टिलाइजेशन एबिलिटी डेवलप होगी। देन ओनली दे कैन पेनिट्रेट द एग एंड कैन फर्टिलाइज द एग ऑल्सो। ओके, तो जब टेस्टिस में स्पर्म्स है, दे आर स्टिल इमेच्योर। ओके, उनमें मोटिलिटी डेवलप होगी लेकिन अभी भी वो खुद होकर मूव नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखना है। ओके, नाउ सच टेस्टिस अलोंग विद द एपिडर्मिस, हमने दोनों को क्या बोला था, टेस्टिकल। अभी यहां पर इस वीडियो में हम किसको कहां पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, नथिंग बट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने स्टडी कर लिया, अभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स विच नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी गमीट प्रोडक्शन, जो गमीट प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, ओके, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, पेयर टेस्टिस। तो किसमें इन्वॉल्व हो गए, these are responsible for a storage, transportation and the maturation of the gametes, nothing but the sperms or the spermatozoa. So in this way these are responsible for the storage, transportation and the maturation of the gametes. तो gametes का स्टोरेज करना है, उनको ट्रांसपोर्ट करना है, उनका फर्दर मैच्योरेशन करना है, एंड हियर for that purpose develops the various organs like epididymis, then the sperm duct, nothing but the vasa differentia, along with the associated accessory glands like the seminal vesicles, prostate gland, Cowper's gland or the bulbourethral gland. And you know, the terminally the human male reproductive system is also get associated or communicate with the excretory system. इसलिए मैंने यहां पर लेटरल व्यू ड्रॉ किया है ताकि सभी ऑर्गन्स का एग्जैक्ट लोकेशन, उसके बारे में आपको क्लियर कट आइडिया पता चल सके। देख, यू कैन ऑब्जर्व हियर द यूरिनरी ब्लैडर इन विच ओपन्स द यूरेटर ऑन आइदर साइड। दोनों किडनीज के तरफ से यूरेटर्स यूरिन लेके आएंगे, वो कहां पर फिलअप करेंगे, दैट इज नथिंग बट द यूरिनरी ब्लैडर में। फ्रॉम द लोअर नेक रीजन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर अराइजेस द एक्चुअल यूरेथ्रा, and that urethra passes through the penis and opens at the tip of the penis by means of an external urethral orifice. Okay, now here that means it is a part of the excretory system, but terminally such sperm duct, nothing but the vasa differentia, get connected with this urethra, and therefore urethra is a common passage for the transfer of the urine as well as the male gametes along with the secretion of the associated gland together called as semen. तो ये कॉमन पैसेज है जिसके द्वारा यूरिन भी डिस्चार्ज किया जाएगा और साथ में सीमेन भी डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन जब यूरिन डिस्चार्ज होगा तो सीमेन नहीं होगा, और जब सीमेन डिस्चार्ज होगा तो यूरिन नहीं होगा, मींस एक बार एक ही टाइप का सेक्रेशन डिस्चार्ज आउट होगा। ओके, नाउ तो इस तरीके से, and the lastly for a transfer of the male gametes in a female genital tract by the act of coitus now develops the copulatory organ, nothing but the penis. So all these epididymis, vas deferens together called as the vasa differentia, seminal vesicles which are again in a pair, prostate gland single, Cowper's glands again paired, then the urethra terminally called as the urinogenital duct because ultimately responsible for the both discharge of the urine as well as the discharge of the semen,
एंड फाइनली द कोपुलेटरी ऑर्गन नथिंग बट द पेनिस। इसका मतलब ये सभी ऑर्गन्स किसी ना किसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, बट नॉट इन्वॉल्व इन द गमेटोजेनेसिस, सो दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। गॉट इट? नाउ तो हम चलते हैं आगे। पहला ऑर्गन नथिंग बट द एपिडर्मिस, जहां पर स्पर्म्स को, जो अभी भी इमैच्योर्ड है, इमोटाइल है, खुद होकर मूव नहीं कर सकते, उनमें मोटिलिटी नहीं है, दीज आर कलेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल in the head portion, caput portion of the epidermis, globus major portion of the epidermis, and you know the epidermis having a ultimately tremendous long and highly convoluted duct, coil duct, okay, which is near about 7 to 12 meter long, and therefore because of that convolution, that long duct get adjusted within a very small area in that pouch like structure, okay. So 7 to 12 meter long coil tubule where the sperms are collected and stored temporarily, temporary storage. So ultimately the epidermis is the actual site of the temporary storage of the sperm. It is can be called as the primary storehouse of the sperm, क्योंकि secondary भी है, okay. then इस वांस डिफरेंस के टिप पर फाइनली और भी यहां पर एम्पुला पोर्शन है, वहां पर भी स्पर्म का स्टोरेज होगा। Now here, तो it is a site of temporary storage of the sperm, जहां पर स्पर्म कलेक्ट हो गए सबसे पहले हेड पोर्शन में, ग्रेजुअली पास ऑन हो गए बॉडी पोर्शन में, और फाइनली कलेक्ट हो गए कौड़ा और द टेल एपिडर्मिस। तो हेड से लेकर कौड़ा एपिडर्मिस तक पहुंचने के लिए उनको नियर अबाउट 12 डेज का समय चाहिए। 12 डेज, नॉट 12 आवर्स, इट इज अ 12 डेज, ओके। जहां से अल्टीमेटली स्पर्म्स हेड और दी कैप्यूट एपिडर्मिस से कौड़ा और दी टेल एपिडर्मिस तक पहुंचेंगे और धीरे धीरे उनमें मैच्योरेशन होगा, जिनमें उनमें धीरे धीरे मोटिलिटी डेवलप होगी। तो कितना ड्यूरेशन चाहिए? 12 डेज का ड्यूरेशन चाहिए। नाउ इन दिस वे, तो यहां पर एक फंक्शन को कॉन्सेंट्रेट करना है, तो विच इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द स्पर्म्स अटेन द मैच्योरिटी एंड मोटिलिटी, and that part is nothing but the actual epididymis. So epididymis is the actual site for the maturity, further maturity of the sperm as well as the attaining the motility, but still they cannot move by their own. अभी भी वो खुद होकर मूव नहीं कर सकते जब तक उनको हाई ऑक्सीजन कंटेंट्स नहीं मिलेंगे, और वो मिलेंगे उनको कहां पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वहां पर ही वो मूव कर सकते हैं, वहां पर ही वो खुद होकर मूव कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। देखिए, तो इन दिस वे इट इज अ साइट फॉर द मैच्योरिटी एंड द मोटिलिटी, एंड नाउ हियर द स्पर्म्स when finally such mature sperms when finally get collected in the cauda or the tail epidermis where they still alive for near about 1 month, वहां पर वो 1 month तक alive रह सकते हैं, live रह सकते हैं, ओके। नाउ हियर, एंड जो भी डेड स्पर्म्स हैं, इन सभी डेड स्पर्म्स को या इमेच्योर स्पर्म्स को यहां पर फैगोसाइटोसिस के द्वारा फिर से डिस्ट्रॉय किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा और रिसाइकल किया जाएगा। तो अल्टीमेटली द एपिडर्मिस कैन बी कॉल्ड एज द रिसाइकलिंग सेंटर फॉर द स्पर्म्स। ये भी बात ध्यान में रखिए, ओके। तो नॉट ओनली फॉर द स्टोरेज, नॉट ओनली फॉर द मोटिलिटी or the maturity of the sperm, motility of the sperm, it is also the recycling center for the sperm. तो प्राइमरी स्टोर हाउस स्पर्म के लिए कौन सा? एपिडर्मिस, ओके, जहां पर स्पर्म्स मैच्योरिटी अटेंड करेंगे, मोटिलिटी अटेंड करेंगे, और जो भी डेड स्पर्म्स है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उनको रिसाइकल किया जाएगा बाय मींस ऑफ फैगोसाइटोसिस। देख, नाउ हियर, तो जब भी स्पर्म्स अल्टीमेटली इजैकुलेट करना है, डिस्चार्ज आउट करना है, उस समय कहां से कलेक्ट की जाएगी? दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द कौड़ा एपिडर्मिस, एंड आफ्टर द इजैकुलेशन, और कौड़ा एपिडर्मिस या टेल एपिडर्मिस में स्पर्म्स अलाइव रह सकते फॉर नियर अबाउट 1 month, ओके। देन व्हेनेवर दे गेट इजैकुलेटेड एंड डिस्चार्ज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जब उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिस्चार्ज किया गया, वहां पर वो
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 3 दिनों तक 3 days तक सर्वाइव कर सकते हैं. नाउ हियर आफ्टर इजैकुलेशन इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट the sperm survive for near about 3 days, nothing but the 72 hours. लेकिन इन स्पर्म के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेस्ट फर्टिलाइजेशन एबिलिटी होती है पहले 2 दिन तक, 48 आवर्स तक. उसके बाद धीरे धीरे उनकी फर्टिलाइजेशन एबिलिटी लॉस्ट होती है. ओके, नो हियर ये बात ध्यान में रखिए. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म सर्वाइव कर सकते हैं 3 दिनों तक, 72 आवर्स तक, लेकिन उनके पास बेस्ट फर्टिलाइजेशन एबिलिटी होती है पहले 2 दिन तक. ओके, देख स्टिल स्पर्म्स आर इमूवेबल, दे प्रोपेल्ड बाय फ्लूइड मूवमेंट. ओके, अभी क्या बात है, इसको क्या बोला जाता है? जब भी टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ओके, ट्यूबुलर रेक्टाई के द्वारा रिटी टेस्टिस में है. रिटी टेस्टिस से कहां पर आए? इन दी हेड और द कैप्यूट एपिडर्मिस में. किसके द्वारा? वासा एफरेंशिया के द्वारा. ओके, तो यहां पर वो मूव नहीं हो सकते, लेकिन इनका मूवमेंट यहां से ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ? तो नॉट ओनली द स्पर्म्स, आल्सो द फ्लूइड व्हिच इज सिक्रेटेड बाय मींस ऑफ दिस डक्ट्स, एंड हियर दैट फ्लूइड गेट प्रोपेल्ड. और उस प्रोपेल्ड एक्शन के द्वारा, प्रोपेलिंग के द्वारा स्पर्म्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां पर लाया जाता है? इन दी एपिडर्मिस. इवन दो फ्रॉम हेड टू टेल एपिडर्मिस the sperms moves by means of that propelling action of the fluid secreted by means of these ducts. Now इस तरीके से हमने यहां पर कौन से पोर्शन को स्टडी किया? एपिडर्मिस. आई थिंक योर आइडिया गेट क्लियर नाउ हियर. नाउ उसके बाद हम चलते आगे. नेक्स्ट पोर्शन आफ्टर द एपिडर्मिस, तो टेस्टिस along with the epidermis together called as the testicle. Next part is a vas deferens. As there are the paired testes, so ultimately there are the paired vasa differentia, which are also called ductus differentia, or nothing but which are the actual sperm ducts. Okay, so these sperm ducts, vasa differentia, singular vas deferens. Okay, it is too much elongated, near about 45 centimeter in length. Arises from the cauda epidermis, ascend, ऊपर चलती है. Okay. Towards the posterior border of the epidermis, enter in the lower pelvic cavity through the inguinal canal. Again, that entry occurs through the spermatic cord, goes upward and comes downward, forming the loop over the urinary bladder. Urinary bladder के ऊपर से loop बनाकर नीचे आएगी. Okay, getting the support of that ureter of that side. Okay, अगर right है vas deferens तो right ureter की तरफ से, left वांस डिफरेंस है तो लेफ्ट यूरेटर का सपोर्ट लेकर नीचे आएगी. एंड टर्मिनली इट फॉर्म्स द स्लाइड सोलन रीजन व्हिच इज अगेन कॉल्ड एज द एम्पुला. तो इस वांस डिफरेंस के द्वारा, ओके, नाउ दिस वांस डिफरेंस कैरीज दैट स्पर्म एंड अगेन दिस स्पर्म्स गेट कलेक्टेड इन द टर्मिनल पोर्शन नथिंग बट द एम्पुला. तो एम्पुला अगेन इट इज नथिंग बट द एक्टिंग एज सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म. ये सेकेंडरी स्टोर हाउस है स्पर्म का. तो प्राइमरी स्टोर हाउस हमने स्टडी किया था एपिडर्मिस, एंड नाउ द सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म इज नथिंग बट द एम्पुला, वेयर द स्पर्म्स आर कलेक्टेड एंड अगेन स्टोर्ड टेम्पररीली टिल इजैकुलेशन. ओके, अगेन व्हेन वी ऑब्जर्व द हिस्टोलॉजी ऑफ सच लॉन्ग वास डिफरेंस, अगर हमने हिस्टोलॉजी स्टडी किया तो उसका जो इंटरनल लाइनिंग है वास डिफरेंस का, इट इज फॉर्म बाय मींस ऑफ ए pseudo stratified columnar epithelium, and the wall of the such vasa differentia or each vas difference is made up of smooth muscles which are arranged in 3 layers. The internal layer and the external layer is of the longitudinal muscle fibers, and the middle layer is of the circular muscle fiber. And regularly, whenever the male person gets sexually aroused, okay, whenever there is a sexual excitement in case of the male, at that time it shows the peristaltic movement, peristaltic muscular movement, nothing but the wave-like movement, and by means of that wave-like movement they convey the sperms from the cauda epidermis, okay, up to the ampulla. And even though already in the ampulla there are the sperms, even though the entire tract, nothing but the vas deferens, contain the millions of sperms, but especially the
quantity of the sperms are collected and carried during the sexual arousal. Okay, and now these are carried by means of a which type of the movement? Peristaltic movement, that is a wave-like movement. And now these sperms are collected in this ampulla. So ultimately ampulla is also the secondary storehouse of the sperm. Even though during in this entire tract of the male reproductive system, the dead sperms are again here destroyed, absorbed by means of a phagocytosis. यहाँ पर भी होता है. Now here later on, such vast difference receive the duct from the seminal vesicle. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन एक्सरे ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशन और उनके रोल के बारे में स्टडी करेंगे. फिलहाल स्ट्रक्चरल पार्ट पर हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. Then later on, such sperm duct or the vas deferens receive the duct from the seminal vesicle and forms a common duct here, which is highly muscular, highly contractile, and such highly muscular, highly contractile short duct is called as the ejaculatory duct. Okay, and such ejaculatory ducts on either side, दोनों साइड के ejaculatory duct, क्योंकि दो वासा डिफरेंशिया है, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल से दोनों साइड में अल्टीमेटली इजैकुलेट डक्ट बनेगी और दोनों इजैकुलेट डक्ट एक ही पॉइंट पर किसमें ओपन हो रही है? यूरेथ्रा में. किसमें ओपन हो रही है? यूरेथ्रा में. तो अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल इट इज नथिंग बट द यूरेथ्रा. इट इज द राइट इजैकुलेट डक्ट एंड देन द लेफ्ट इजैकुलेट डक्ट. इस तरीके से दोनों साइड के इजैकुलेट डक्ट एक यूरेथ्रा में, मिडिल यूरेथ्रा में दोनों साइड से एक ही पॉइंट पर ओपन हो रही है. ओके, एंड नाउ इट इज द एक्चुअल कनेक्शन attachment of the human male reproductive system with the actual terminal part of the excretory system, nothing but the urethra. Now in this way, here such both ejaculate duct will get connected with the urethra. Now that meeting point, उस meeting point के complete surrounding में होता है गोल बॉल के साइज इतना single X-ray gland, and that is nothing but the prostate gland, which again add its secretion called as the prostatic fluid, and open in that junction by means of several fine ducts. Okay, then later on, the urethra continue further, as well as receiving the another duct of the another associated glands or the X-ray glands, which is called as the Cowper's gland or the bulbourethral gland. And such urethra now passes through the penis and opens at the tip of the penis. In this way, तो यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया? Vas deferens, nothing but the ductus deferens, as they are the paired, so called as vasa differentia, ductus differentia, or which are nothing but the sperm ducts. तो paired sperm duct. ओके, यहाँ पर सिंगल हमने इंडिकेट किए क्योंकि लेटरल व्यू हमने लिया है. लेटरल व्यू लेने का पर्पस क्या है कि सभी ऑर्गन्स का एक्चुअल लोकेशन आपके ध्यान में आ जाए. देखो here they convey these sperms. function क्या है इनका? they convey these sperms during the sexual arousal from epididymis towards the urethra by the peristalsis. peristaltic movement ये ध्यान में रखना है. ओके, देख तो उनका काम ही है कि peristaltic movement के द्वारा उस sperm को कन्वे करेंगे whenever the male person is sexually aroused, and then again collected in the ampulla, which is a secondary storehouse of the sperm. ओके, तो स्पर्म्स तो कंटिन्यूअसली बन रहे हैं, लेकिन सभी बनने वाले स्पर्म्स इजैकुलेट तो नहीं होते. ओके, तो अल्टीमेटली दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ द स्पर्म्स आर रेगुलरली डिस्ट्रॉयड. उनको फेगोसाइटोसिस के द्वारा रेगुलरली डिस्ट्रॉय किया जाता है, रीएब्सॉर्ब किया जाता है. कहां पर? एपिडाइमिस में भी, एंटायर स्पर्म डक्ट में भी, एम्पुला में भी. ओके, नाउ ये बात ध्यान में रखना है. देन फर्दर पार्ट, व्हेन वी ऑब्जर्व दैट यूरेथ्रा पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम अभी. ओके, तो पहला पार्ट हमने एपिडाइमिस स्टडी किया, सेकंड पार्ट वास डिफरेंस, एंड नाउ द यूरेथ्रा. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एज वेल एज द कॉपर्स ग्लैंड, उनके लोकेशन, ओके, उनका स्ट्रक्चर, उनके सिक्रेशंस और सिक्रेशन के फंक्शंस, एंड लास्टली हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे दैट इज अ कोपुलेटरी ऑर्गन, नथिंग बट द पेनिस. Now about the urethra, which is the actual part of the excretory system, but now in case of the human male, get associated with the reproductive system also, and acting as a common passage for both the discharge of the urine as well as discharge of the semen.
sperms along with the secretion of the associated gland called as the semen. Okay. So such urethra, first part, when it arises from the urinary bladder, from the neck of that urinary bladder, and then receive the ejaculate duct on either side. दोनों साइड से किसको रिसीव कर रहा है? ejaculate duct. That junction get completely surrounded by means of a prostate gland. So such part of the urethra, in case of the human male, that part of the urethra which get completely surrounded by means of a prostate gland, now such part is called as the prostatic urethra. उसको हम क्या बोलेंगे? Prostatic urethra. Then a shortest segment before entering into the penis, that shortest segment is called as the membranous urethra. Membranous urethra. And then after that it receive the duct of the Cowper's gland or the bulbourethral gland and then enter in the penis, and it is the longest segment, and such longest segment is called as the penile urethra. तो urethra को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड दी पेनाइल यूरेथ्रा. शॉर्टेस्ट सेगमेंट कौन सा है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सा है? पेनाइल यूरेथ्रा. ओके. नाउ अभी यूरेथ्रा. तो यूरेथ्रा not only responsible for a discharge of the urine but also responsible for the discharge of the semen. लेकिन एक बार एक ही secretion discharge होगा. देख, so this urethra is also called as the urinogenital duct. ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखना है. तो in case of the human male, the urethra acting as a urinogenital duct is a part of the urinary means excretory system as well as genital means reproductive system. So called as the urinogenital duct. Now, अभी अगर हम यूरेथ्रा को कंपेयर करते हैं मेल और फीमेल में, तो मेल में इट इज टू मच लॉन्ग, नियर अबाउट 18 सेंटीमीटर, 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, while in case of the female it is so much short, 4 to 5 centimeter length. Okay. In case of the male it get associated with the reproductive system and acting as a urinogenital duct, but in case of the female it is purely the urinary duct and responsible for a discharge of the urine only. Okay. Now उसके बाद हम एक प्रोसेस की तरफ चलते हैं. ओके. विच इज नथिंग बट द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिसको हम इन जनरल फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन बोलते हैं. ओके. जहां पर मेल पर्सन को परमानेंटली स्टरलाइज किया जाता है. ओके. एक्चुअली क्या किया जाता है? नो हियर a small cut is given towards the back of the scrotal, each scrotum. स्क्रोटम के पीछे से, दोनों स्क्रोटल पाउचेस के पीछे से छोटा सा कट देकर वांस डिफरेंस को पुल आउट किया जाता है. इट इज अ स्पर्म डक्ट और द वांस डिफरेंस पुल्ड आउट. ओके. A short portion of the vas difference or the sperm duct is now cut. उसको कट कर दिया गया about 1 to 1.5 सेंटीमीटर. देन दी फ्री एंड्स, जो फ्री एंड है वांस डिफरेंस के, उनको ट्विस्ट करके इस तरीके से ट्विस्ट किया जाएगा एंड दे गेट टाइड. उनको टाई किया जाता है. दैट इज लिगेटेड. तो स्पर्म डक्ट को पुल किया गया बाहर, छोटा सा पोर्शन कट कर दिया गया, जो फ्री एंड्स है उनको ट्विस्ट करके उनको टाई कर दिया गया, लिगेशन किया गया. ओके. गॉट इट? सच प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर इज कॉल्ड एज द वैसेक्टोमी. इट इज कॉल्ड एज द वैसेक्टोमी. दैट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन. एंड देन अगेन दीज आर इंसर्टेड एंड द स्टिचेस आर गिवन ऑन द स्क्रोटम. ओके. हार्डली 1 or 2 stitches in each scrotal pouch. Got it? इससे क्या होगा? नाउ द स्पर्म तो कंटिन्यूसली बनेंगे टेस्टिस में, कलेक्ट हो गए कहां पर? एपिडाइमिस में, लेकिन अभी वो कन्वे नहीं हो गया आगे. ओके. इवन दो व्हेन देयर इज अ सेक्सुअल अरूजल, व्हेन देयर इज अ इजैकुलेशन, ओके, लेकिन उस इजैकुलेट में, उस सीमेन में सिक्रीशन हो गया अदर एसोसिएटेड ग्लैंड के, लेकिन उनमें स्पर्म नहीं होगा. तो अल्टीमेटली सच मेल पर्सन कैन नॉट फर्टिलाइज द एग. ओके. गॉट इट? एंड प्रेगनेंसी गेट अवॉइडेड. लेकिन ये वैसेक्टोमी इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि
अभी भी millions of sperms are there in the entire male reproductive tract. अभी भी मिलियंस में स्पर्म्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. ओके, जब तक नियर अबाउट 20 टाइम्स इजैकुलेशन नहीं होगा तो एंटायर सिस्टम फ्लश आउट नहीं होगी और पूरे स्पर्म रिमूव नहीं होगी. इसलिए कपल्स को पर्टिकुलरली डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि दे शुड फॉलो द अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर नियर अबाउट 3 months even though after the vasectomy. Okay, and whenever that ultimately vasectomy is done, the such ultimately vas difference ultimately cut and ligated means tied, उसको फिर से ज्वाइन नहीं किया जा सकता है. ओके, गॉट इट. उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है फिर से. इट इज नियरली इम्पॉसिबल. नाउ in this video we have already concentrated on which portion ultimately is secondary sex organs, especially about the epidermis, then the sperm duct and ultimately the urethra. इन 3 पोर्शन पर इस वीडियो में हमने कॉन्सेंट्रेट किया है. ओके, आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल. ओके, एंड इन टुमारो अल्टीमेटली नेक्स्ट वीडियो we will concentrate on the secretions of the seminal vesicle, secretions of the prostate gland and secretions of the Cowper's or the bulbourethral gland. Okay, now आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. विल मीट ऑन टुमारो.